गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर। यस सर। हेलो, प्लीज कंफर्म। यस सर। आवाज आ रही है बच्चों? यस यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी आपकी क्लास अभी ओवर हो गई जो एक चल रही थी कि ओवर हो गई सर। ओवर हो गया। ठीक, वेरी गुड। हम लोग ये क्लास को स्टार्ट करेंगे फटाफट। चीनी है? हाँ जी अच्छा, सर, लेकिन ये कॉमर्स के ही हैं और ये आरती सिंह सर ने साइन तो कर दिया, लेकिन मॉर्निंग में नाम नहीं कर रहे। मॉर्निंग उसका एक टाइम फिक्स करो मॉर्निंग। ठीक है, लॉग भी कर बस देते तीन हैं। ही हैं ये लोग। ठीक है, अभी आए हो लॉग कर देते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे नाम रह गया। प्लीज इसमें ऑनलाइन अब नाम और वो लिखते हैं डेट। सर आपको प्लीज हाँ 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 प्लीज। Dear learners, heartily I welcome to all of you in today's MMPC Human Resource Management Academic Counseling class. Really, I'm so happy to welcome you all in this counseling session for the MBA program. All of you are very lucky. All of you get the admission in the Indira Gandhi National Open University for pursuing your master's degree in the business administration. And really this degree will help you a lot in your career and in your personality development, and especially for our country India, for the become the developing to develop. Dear learners, I Dr. Sapan Asthana is going to counsel you in MMPC 002. The title of the paper is the Human Resource Management. Yes, you are listening. Aarti Ves, you are listening? Yes sir. Okay. Now I'm going to just start the sharing of my PowerPoint presentation. PowerPoint presentation of this MMPC 002. Okay. I request to all of you, please mute when I sometime ask you some things. You must unmute and then speak. Okay sir. Okay sir.
I think all of you, my slide is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Very Yes. good. Sir. The title of the paper is the Human Resource Management. As you all know, the Human Resource Management is a very important paper in the Masters in the Business Administration. Yeah, when you taken the admission in the MBA program, many person ask to you which stream you will get admission in the MBA. Some person said in HR, in a finance, in international business, etc. Human resource management is a very important paper in the MBA program. The outline of this course structure is total of 4 blocks you will study. The block 1 is the introduction to the human resource management. In the block 1, we try to describe the various fundamental aspect of the human resource management, the Manav Sansadhan Prabandhan. And the block 2 cover the sourcing of the human resources. What are the various sources to recruit the right person for the right job? And block 3 is related to the performance and the compensation management. Especially in the block 3, we will study the various performance methods and the compensation methods. And block 4 is cover the employer and employee relationship. A good relationship is helpful in the business development, in the organization development. So overall, the 4 block we will study in MMPC 002, the human resource management, Manav Sansadhan Prabandhan. Uh, when we talk on the block 1, in block 1, the introduction to the human resource management. In block 1, there are the 3 units, unit 1, unit 2, unit 3. In unit 1, the concept and evolution of the HRM. In unit 2, the environment in the HRM. And unit 3, the functions of the HRM. In block 2, sourcing of the human resources. Unit 4, the human resource planning. Unit 5, the job analysis, design, and the evaluation. Unit 6, the recruitment and selection. Unit 7, socialization and mobility. Socialization and mobility is come under the unit 7 and block 2. Block 3, the performance and the compensation management. Under this, the performance appraisal, career development, training and development, compensation and reward management. Outline of the course, when we talk in block 4, the employer and employee relations, employee empowerment, grievance handling, and discipline management procedure, and unions and the associations. In this way, dear learners, all of you get the complete knowledge about the human resource management, how you are going to recruit the right person for the right job. This is the very important in current corporate era. Suppose if the human resource is performing good, the whole firm will grow. And if the human resource is not performing good, then the organization will not grow properly. The concept and the evolution of the HRM, human resource management, is a management function that focuses on staffing, developing, maintaining, and the retaining the organization's most precious resource. Its people, HRM is concerned with the organization's plan and goal, which can be met by the making the best use of the human resources. डियर लर्नर्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, यह मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। यह प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो स्टाफिंग पे ध्यान देता है। स्टाफिंग माने मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करने पे ध्यान देता है और रिक्रूट करने के साथ साथ उनको डेवलप करना। ऐसा नहीं है कि जिस ट्रेट और स्किल के साथ आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट लिया है और उसी स्किल और ट्रेड के साथ ही आपका रिटायरमेंट हो जाए। नहीं, उस ह्यूमन रिसोर्स के स्किल में डेवलपमेंट करना, उस ह्यूमन रिसोर्स के
जो है आई रिक्वेस्ट टू द लर्नर्स प्लीज म्यूट, जिससे कि और जो लर्नर है उनको डिस्टर्ब ना हो। आई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। एंड डेवलपिंग माने जिस भी ट्रेट या स्किल है उनके अंदर जो एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, उसको भी हम डेवलप करें, और जिस मेंटेनिंग जो उनकी एक क्वालिटी है, जो उनकी स्किल है, उसको भी हम प्रॉपर ढंग से मेंटेन कर सकें। एंड रिटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट्स होता है। तो आप एसेट्स को क्या चाहेंगे कि हमेशा एसेट्स हमारे साथ बनी रहे। अगर वह अच्छा एसेट्स है तो साथ बनी रहे, अगर अच्छा नहीं है तो आपके लिए लायबिलिटी होती है। तो रिटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स इट्स पीपल, आप जानते हैं कि वह मनुष्य है, आदमी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी आगे बढ़ पाएगा जब ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे जस्ट लाइक ए एसेट्स होगा। तो कोई भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के प्लान, उनके गोल को बनाने में, उसको अचीव करने में जो है जो मानव संसाधन है उसके बेस्ट यूटिलाइजेशन से जो है यह रिलेटेड होता है। जब आप लोग अपने पूरे इस कोर्स को पढ़ लेंगे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो आप लोग जान पाएंगे कि कैसे एचआरएम कहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, एवोल्यूशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट भी आप समझ पाएंगे कि इसका जो है एक संगठनात्मक वातावरण और जो एक प्रभाव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है, और फंक्शंस ऑफ द आउटसोर्सिंग, स्टाफिंग एंड इंडक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सोर्सिंग के क्या कार्य हैं, स्टाफिंग के क्या कार्य हैं, और इंडक्शन का क्या कार्य है। इन सब से हम क्या समझते हैं, what we are going to understand from the sourcing, staffing and induction, the need and method of the performance and compensation management। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम क्यों करते हैं, और कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, रेमुनेशन को कैसे हम जो है डिटरमाइन करते हैं, इसकी भी जो है हमें समझ आ जाएगी। प्रोसेसेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, कैरियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग की क्या जो है विभिन्न मेथड्स हैं, क्या प्रोसेस है, हाउ टू एम्पावर एम्प्लॉई, हैंडल grievances and deal with a union. This is the very important, my dear learners. When your employee is empowered, then organization will grow rapidly. If your employee is not empowered, how your organization will grow? It is very challenging for the owner. So you must be build a good relation with your employee to empower the employee, and how you are going to tactfully handle the grievances, how you are going to deal with the unions. This is the important. प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग समझ रहे होंगे जो मैंने आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, कि आप समझ पाएंगे कि मानव संसाधन जो प्रबंधन है इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके कार्य कैसे हैं, यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वातावरण को कैसे प्रभावित करता है, और इसके क्या सोर्सिंग माने कैसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, कैसे हम स्टाफिंग करते हैं, कैसे हम इंडक्शन करते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, और हम किसी की उत्पादकता का मापन कैसे करते हैं, और जो है किस प्रकार से हम उनको सही पारिश्रमिक देते हैं। कैरियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एम्पावर एम्प्लॉय, हैंडल ग्रीवेंसेस एंड डील विद द यूनियन। इतनी सारी चीज़ों को अगर आपने MMPC 002 जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मन से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया जो कंटेंट है, तो आप लोग सक्षम हो जाएंगे इस प्रकार की चीज़ों को जो है डील करने में। अब प्रश्न आता है आप पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास डिजिटल जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वह ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है। ई ज्ञान कोश पे आप जो है प्रॉपर ढंग से विजिट कर सकते हैं और अपने कोर्स मटेरियल को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जो है मैं आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास ले ही रहा हूँ, तो अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करिए। जब आपकी काउंसलिंग क्लास भविष्य में शेड्यूल हो तो आप अपने प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं, तो हम लोग उस पर डिस्कस भी कर लेंगे। और
जो HRM से रिलेटेड बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें हैं। किसी भी जो है जब आप अपने डिजिटल मटेरियल को रेफर करेंगे तो लास्ट में रेफरेंसेस होते हैं, तो उन रेफरेंसेस को आप जो है प्रॉपर ढंग से कोई भी बुक लेकर के पढ़ भी सकते हैं। आजकल मार्केट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें बहुत ही रीजनल प्राइस पे अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट, जब हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द HRM, evolution of the HRM, objective of HRM, importance of HR, scope of HRM, nature of HRM, components of HRM, ये सब बहुत सारे उसके चीज़ें हैं जो हमको HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने में मदद करती है। बात करते हैं, देखिए ये लाइन कोई एक लर्नर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस लाइन को जरा पढ़े, anyone voluntary. According to Mr. N.R. Narayan Murthy, founder Infosys Limited, you must treat your employees with respect and dignity because in the most automated factory in the world, you need the power of human mind. That is what brings innovation. If you want high quality minds to work for you, then you must protect the respect and dignity. Thank you, sir. Really, I appreciate your volunteership to read this. Can you explain? Can you explain? Or any other learner can explain? Sir, can I speak in Hindi? No issue. You must speak in Hindi. Language is no any barrier. You must speak in Hindi. आप हिंदी में बोल सकते हैं और मैं भी आपको हिंदी में बता सकता हूँ, क्योंकि लोग MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं इंग्लिश ही लैंग्वेज, इसलिए हमको बोलना पड़ता है। अदरवाइज आप हिंदी में भी बता सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। I can speak in English, but this thing मतलब हिंदी में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं उसको। हाँ, बताइए बताइए, अच्छा लगेगा। हाँ सर, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ट्रीट करना चाहते हैं इस ऑटोमेटेड फैक्ट्री वर्ल्ड के ऑटोमेटेड फैक्ट्री में, तो आपको उनके ह्यूमन माइंड ह्यूमन मतलब उनके दिमाग की जो पावर है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और वही हमें आगे इनोवेशन की तरफ लेकर जाती है। और अगर हम हाई क्वालिटी माइंड के साथ वर्क करेंगे तो हम उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Excellent. I appreciate your sincere effort. थैंक यू सर। Thank you. देखिए इसमें बहुत अच्छा हमारे लर्नर ने बताया, मैं उनके नाम को नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे सामने। ओके ओके, थैंक यू। तो शेयर है तो मुझे भी PPT दिख रही है जो आपको भी दिख रही होगी। देखिए आप सभी जानते हैं कि मिस्टर N.R. नारायण मूर्ति, फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस लिमिटेड, जिनको आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग जानते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात जो है इन 4 लाइनों के माध्यम से कही। उन्होंने कहा यू मस्ट ट्रीट योर एम्प्लॉइज विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मतलब आप अपने एम्प्लॉय को पूर्ण जो है सम्मान दीजिए और उनके साथ जो है जो डिग्निटी के साथ जो है एक बिहेवियर को डेवलप करिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज मानी जाती हैं वहाँ पे वह जो बेस्ट माइंड होता है उस बेस्ट माइंड के ही बेसिस पे वो सब ऑटोमेशन का कार्य होता है। जैसे आप सब जानते हो कि जब भी हम कोई कार्य को करते हैं तो सबसे पहले जो थॉट है वो हमारे ब्रेन में आता है। अगर ब्रेन में आपके आया कि आज हमको काउंसलिंग क्लास अटेंड करना, तब आज आप यहाँ बैठे हो, और ब्रेन में ही ना आता तो आप कहीं इधर उधर होते, आप ऑनलाइन नहीं होते। तो जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का जो बेस्ट ब्रेन है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको बहुत टेक्टफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली और डिग्निटी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जितने भी इनोवेशंस हैं, नवाचार है, इन्वेंशंस हैं, इनोवेशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, ये सभी मनुष्य के मस्तिष्क का ही प्रतिफल है। ऑल इज द रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, so you must treat human resource a great asset of your organization. Among the 5 M's of the management, namely men, money, machine, material and method, आप सब जानते होंगे कि जो 5 M होते हैं मैनेजमेंट के, जिसको हम कहते हैं मेन मनुष्य हैं, जो आदमियों का एक समूह है जो कार्यों को करते हैं, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मेथड, ये 5 जो है ये उत्पादन के साधन है।
मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन पांचों रिसोर्सेज में कौन सा फंडामेंटल है, जो होगा तभी चार आएंगे, तो आप क्या उत्तर देंगे? मैन। वेरी गुड, वेरी गुड। इट मीन्स कि अभी आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है सभी लर्नर्स। एक मिनट लर्नर्स, एक मिनट। Dear learners, when we talk about the 5 M's of the management, जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो 5 M का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसमें एक मैन है, एक मनी है, एक मशीन है, एक मटेरियल है, एक मेथड है। तो जैसे भी आज आप मैन का पढ़ रहे हैं, EFT है, 1M ऑफ द मैनेजमेंट, तो इसका मतलब आज आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा भी सब्जेक्ट होगा, आप मनी पढ़ेंगे, उसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा भी आपके पास कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें आप मशीन के वर्किंग के विषय में पढ़ेंगे, उसको हम कह सकते हैं मशीन और मटेरियल मैनेजमेंट का भी एक आपके पास जो है कोर्स है, ठीक है। और मेथड, जिसको कहते हैं मेथडोलॉजी, तो होल दी ऑपरेशन रिसर्च, इन सब चीजों को। तो जो हमारे 5 M हैं, ये ऑलरेडी मैनेजमेंट के ब्रॉडर डिसिप्लिन की तरफ ले जाते हैं। तो जो एक मेन है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। HRM डील्स विद द फर्स्ट M। मेन आर व्हाट वी रेफर टू एज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन। जैसे हम किसी भी कार्यों को करते हैं तो हम नहीं बोलते हैं कि भाई हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी कार्य करना, तो ह्यूमन रिसोर्स इज द नेसेसिटी। आज आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे होंगे, उसमें ह्यूमन रिसोर्स होंगे, चाहे वो 30 हो, चाहे 50 हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000 हो। तो एज पर द size of the organization, we determine the number of the human resources. Human resources are an organization's most valuable and unique assets. देखिए लाइन लिखी गई है 4th में, आप लोगों को मैं इस क्लास के बाद शेयर भी कर दूंगा एक जो भी PPT है, तो आपके पास सुरक्षित भी रहेगी। और एक PPT मैं बता दूं कि मैंने कहीं बाहर से नहीं, आपकी ज्ञान कोश से जो आपका मटेरियल है उसी से जो है इसको प्रिपेयर भी किया है। Human resource management is a dynamic and the challenging task for any organization, especially in the age of the globalization and rapid technological change. ये बड़ा important है learners। अब आप सोचेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डील करना ये बहुत डायनामिक और चैलेंजिंग टास्क क्यों है? निश्चित है, क्योंकि जो ब्रेन जब जितना इन्वेंशन कर सकता है, जितना रिसर्च कर सकता है, जितनी नई चीजों को ला सकता है, तो एक व्यक्ति जो ब्रेन को डील कर रहा हो, जो व्यक्ति ब्रेन को कंट्रोल करना हो लोगों के, जैसे मान लीजिए कि आप HR मैनेजर हैं और आपको 100 एम्प्लॉइज को हैंडल करना है, इसका मतलब ये हो गया कि आप 100 जो है ब्रेन को आप लीड कर रहे हैं। तो ये निश्चित डायनामिक भी है, चैलेंजिंग भी है। कैसे? हर व्यक्ति का माइंडसेट एक नहीं होता है, अलग होता है। हर एक व्यक्ति का एटीट्यूड एक नहीं होता, सोचने का, समझने का, देखने का नजरिया एक नहीं होता। तो इन सभी लोगों को ऐसे यूटिलाइज करना जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ले, तो यह वाकई बहुत ही डायनामिक और जो है यह चैलेंजिंग वर्क है। और स्पेशली जब ग्लोबलाइजेशन, जब पूरा वर्ल्ड एक गांव की तरह हो, बहुत तेजी से तकनीकी चेंजेस हो रहे हो, तो बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए HR मैनेजर को बहुत डायनामिक होना चाहिए। आप सभी लोग चूंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मेरे विद्यार्थी हो, मेरे लर्नर हो, तो मैं आप लोगों को HR जो है प्रैक्टिशनर भी बोल सकता हूँ, HR जो है मैनेजर्स भी बोल सकता हूँ। अतियुक्त नहीं होगी, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग HR पढ़ रहे हो, मतलब आप सभी HR के मैनेजर हो गए। आप अब एक किसी एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूट करना है, उसको कैसे
इंडक्शन ट्रेनिंग देनी है, कैसे उसको जो है डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी है, कैसे उसको रिटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे उसको सही रेमुनरेशन देना है, ये सब आप चीजों को यहाँ समझेंगे। Dear student, when we talk about the concept of the human resource management, the HRM is the process of acquiring. देखिए कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। The HRM is the process of acquiring, developing, maintaining, and retaining the human resource in an organization with the strategic objective of the achieving organizational goals. इसका यह मतलब हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, यह प्रोसेस किसका है? एक्वायरिंग। एक्वायरिंग माने लोगों को अपॉइंट करने का, डेवलपिंग अपॉइंटेड लोगों को विकास करने का। उनको विकास भी तो करना है, ऐसा नहीं कि जो स्किल थी वही स्किल रहेगी, उसमें स्किल में डेवलपमेंट करना है, उनकी क्वालिटीज में डेवलपमेंट करना है। सपोज कोई आया और इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, लेकिन जब उसको हमने जॉब दिया उसके बाद हमने उसको ट्रेन किया और वो अब अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है। पहले जब वो आया तो उसको फ्रंट ऑफिस में हम नहीं रख सकते थे, लेकिन अब उसको हम रख सकते हैं। मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स। मेंटेनिंग मतलब कि उसकी जो ट्रेड्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसको मेंटेन भी रखना है। ऐसा नहीं कि आज वो अच्छा स्किल्ड है लेकिन कल वो स्किल्ड जो है ना रहे, उसको मेंटेन करना और उन एम्प्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लंबे समय तक रिटेन करना, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक जो आपकी ऑब्जेक्टिव हैं, जिसको कहते हैं कि उद्देश्य हैं, उनको अचीव करना, और अचीव करने के बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम तभी पाएंगे जब अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ 3 वर्ड हैं। जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट। ह्यूमन का मतलब है कि जो वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है। This term refers to the organization's required workforce, और जो रिसोर्स है refers to the an organization's workforce. Human माने organization's required workforce, कितने लोगों की जरूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। रिसोर्स का मतलब है कि कितने वर्कफोर्स की आवश्यकता है। और मैनेजमेंट का मतलब आप सभी जानते हैं, मैनेजिंग a men tactfully called the management, refers to the most efficient use of resources in order to achieve the organizational goal. What are the various resources you have? You must use the efficiently called the management. जैसे हमारे सभी जो लर्नर्स हैं, इन लोगों ने MBA में एडमिशन लिया, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। MBA जो मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया, किस लिए लिया? आने वाले समय में आप सभी लोग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स बन सको। तो आज हमारे कंट्री में क्या है, सब लोगों को MBA की डिग्री मिल जाती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस स्वयं को ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो अगर आप लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको सेल्फ मैनेजमेंट, अपना लाइफ मैनेजमेंट, अपना ऑफिस मैनेजमेंट, आपका कैरियर मैनेजमेंट, आपका एजुकेशन मैनेजमेंट, हर चीज में आपको मैनेजरल स्किल होनी चाहिए। इट मीन्स कि what are the various functions we learn in the management, like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. We must uh, apply in our daily to daily life. Okay, dear learners, you are getting my point? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. Dear learners, definitions, some definitions I will share with you. Like many eminent management scientists have defined the HRM in the different way. Edwin B. Filippo ने कहा कि human resource management is planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development, resources to the end that individual and the societal objective are accomplished. कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये बेसिकली जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, जो जिनको हमने अपॉइंट किया है उनको डेवलपिंग और रिसोर्सेज से रिलेटेड है। और डिसेंजो एंड रॉबिन्स ने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल प्रोसेस
of acquiring, engaging the required workforce appropriate for the job and concerned with the developing, the maintenance and the utilization of the workforce. डियर लर्नर्स, प्राय देखा गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो वर्कफोर्स को प्रॉपर ढंग से इफेक्टिव वे से मैनेज करना, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। मान लीजिए जैसे आप इंडियन आर्मी को देखते हैं तो इंडियन आर्मी बहुत बड़ी संख्या में जो है एक स्ट्रक्चर है फोर्स का, जिसमें जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, इन सबका एक स्ट्रक्चर है। लेकिन उसको किस प्रकार से कमांड दिया जाता है, किस प्रकार से उसको यूटिलाइज किया जाता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सक्सेस पे डिपेंड होती हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी जिस कार्यालय में काम कर रहे होंगे, वहाँ लोगों का एक ग्रुप होगा, कैसे वह ग्रुप अच्छा कार्य करता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, यह भी आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी लर्नर मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मैं देख पा रहा था अराउंड 60, ये कहीं न कहीं कार्य कर रहे हैं। और हमारा जो एमबीए का प्रोग्राम है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह इन कार्यकारी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत फ़ायदेमंद से मतलब ये है कि जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो पढ़ना ही चाहिए होता है। जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप खुद अगर जॉब को कर रहे हैं तो आपका अपॉइंटमेंट हुआ होगा, अपॉइंटमेंट से पहले आपने अखबार में नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, एडवर्टाइजमेंट के जो है एडवर्टाइजमेंट के जो है अगेंस्ट आपने प्रॉपर ढंग से जो है अपना आवेदन दिया होगा। आवेदन करने के बाद आपके पास कॉल आई होगी, और जब कॉल आ गई तो कॉल आने के बाद आपने प्रॉपर ढंग से जो है रिटन दिया। रिटन के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ। ग्रुप डिस्कशन के बाद जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका प्रॉपर ढंग से सैलरी नेगोशिएशन हुआ। उसके बाद आपको ऑफर लेटर गया, आपने ज्वाइनिंग किया, आपको अपॉइंटमेंट लेटर गया। तो ये सब जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में इधर आपने देखा, इन्हीं चीज़ों को हम प्रोफेशनली इन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसमें हम पढ़ते हैं। Dear learners, when we talk about the evolution of the HRM, तो HRM has evolved from the personal management। हुआ क्या, आज हम लोग कहने लग गए हैं कि यह HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। लेकिन पहले क्या होता था, इसको हम लोग यह वर्ड यूज करते थे पर्सनल मैनेजमेंट। हम लोग कहते थे पर्सनल मैनेजमेंट, जिसको कहा जाता था कि ये मानव संसाधन विभाग है। तो है सब चीज एक ही, चाहे आप एचआरएम कहिए, चाहे पर्सनल मैनेजमेंट कहिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट में कौन सा वर्ड अच्छा लग रहा है, तो आप खुद कहेंगे कि सपन सर, मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब यही हुआ, एचआरएम करके चीज़ें प्लीज़ जो है हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है भी हम अच्छा वर्ड है, इसको आप कहेंगे। यह पर्सनल मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि कोई दूसरी चीज़ है। द पर्सनल मैनेजमेंट स्पेशली यह भी मानव को, मानव के समूह को ही डील करने का मैनेजमेंट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है HRM has evolved from the personal management which was the erstwhile the management system to manage the employees। सेम चीज है। Going back to the roots of the evolution of the personal management, the contribution of the psychologist and the management experts such as Elton, Mayo, F.W. Taylor, Robert Owen play the significant role। Elton Mayo was the founder of the human relations movement in the 1920s। तो 1920s के ऑनवर्ड जब आपका, उससे पहले जब सब हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट पे बात करते थे, लेटर ऑन जो है यह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। कई बार ये बात आई कि स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट, the commodity concept before industrial revolution, the guild system was the beginning of the personal management। Guild was a closely knit group concerned with the selecting, training, rewarding and the maintaining workers labor began to be considered a commodity to be bought and sold। यह कमोडिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहा। जब पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगर फेज वाइज डेवलपमेंट देखें तो
तो ये जनरली वस्तुओं के क्रय विक्रय तक ही लोगों के मैनेजमेंट से रिलेटेड था कि किस प्रकार से विक्रय टीम जो है चीज़ों को सेल आउट करेगी। उसके बाद प्रोडक्शन से रिलेटेड आया कि जब कोई चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा तो एम्प्लॉइज वेर दे कंसिडर्ड एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जस्ट लाइक लैंड मटेरियल मशीनरी टेलर्स scientific management structures proper the selection the training of the employees so at the maximum productivity। तो प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट ने बताया कि जो हम प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन के कार्य में जो एम्प्लॉई बेसिकली कोई प्रोडक्शन का कार्य करेंगे तो उनको प्रॉपर जो है सिलेक्शन प्रोसेस पे ट्रेनिंग पे ध्यान देने की बात की गई। तो आप सब जानते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके जो जनक हैं वो हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जिसको हम फादर कहते हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जब हम प्रोडक्शन सिस्टम के लिए किसी व्यक्ति को रखते हैं तो उसको प्रॉपर हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको प्रॉपर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, फिर वो जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। वह भी ह्यूमन रिसोर्स से ही रिलेटेड था। द पैटर्निस्टिक कॉन्सेप्ट में बात आई कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड form trade union to improve. Also, employer began to provide the scheme to workers. Employers assured a fatherly and the proactive attitude toward their employees. इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट बोला कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एम्प्लॉय यूनियन की चीज़ों को कैसे प्रॉपर ढंग से मैनेज किया जाए। आप देखते होंगे पहले आए दिन हड़ताल हुआ करते थे ऑर्गेनाइजेशंस में। आज भी बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ ज़्यादा हड़ताल होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हड़ताल की बातों पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता और उनको परमिशन भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, यूनियन बहुत बार जो है किसी भी समस्या को, किसी भी चैलेंज को सॉल्व आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और कई बार जो है ये यूनियन बड़ा नुकसानदायक भी होता है। ठीक है। जब बात हम करते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट की, it is based on the belief that implies had the certain inalienable right as the human beings, and it is the duty of the employer to protect. Rather, social and the psychological satisfaction was equally important in human problems of the workplace. This is also known as the Hawthorne element of Gruger also generated the considerable interest human relations concept। देखिए बहुत जरूरी है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें एम्प्लॉई है उसमें एम्प्लॉयर है तो उनको हम ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट के आधार पे भी चीज़ों को हम देखें। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी गई है कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्क प्लेस, इन चीज़ों को हमें देखना है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट in problem of the human problem of the workplace। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट पे मानव संसाधन कैसे आगे बढ़ेगा इस पे डिस्कस किया गया। जब हम बात करते हैं द बिहेवियरल ह्यूमन रिसोर्स के ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट के in it aimed at the analyzing and understanding the human behavior in organization, the motivation, group dynamics, organizational climate, organizational conflict, etc. Become the popular under this concept. Employee began to be considered as the valuable assets of an organization. Efforts were made to integrate the employee with the organization so that the organizational goals and the employees aspiration could be achieved simultaneously. Focus shifted toward the management practices like the two-way communication, management by objective, role of the informal groups, equity circles, etc. How the human resource behavior is going to impact on the organization. This is the very important. How the communication play the important role, how the various formal, informal groups are working in the organization, etc. इन चीज़ों पे कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है इस पे हुआ। ये सब फेजेस हैं, बहुत संक्षिप्त में आपसे डिस्कस कर लो। The emerging concept now implies are they considered as the edge partner in the industry. They are given share in the company's stock members. Slowly and steadily, HRM is emerging as a display.
अब आप सब समझ गए हैं कि आजकल जो एम्प्लॉय है वो कई बार शेयर होल्डर भी होता है उन चीज़ों को, जो शेयर्स को खरीद करके, तो उसकी स्टेक है तो वह उसमें प्रॉपर ढंग से कोई चाहे वह मीटिंग हो, चाहे उसमें कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो, उसमें भी मदद करते हैं। Dear my learners, I'm happy to discuss this point, the difference between the personal management and personal management and HRM. जैसा कि आप लोगों को मैंने पूरा बताया, देखिए अप्रोच की बात अगर आप करें तो जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच और रिएक्टिव एडहॉकिज्म ढंग से कार्य करता था कि ये कार्य बस अभी हो जाए, ये इनफ है। मान लीजिए जैसे किसी एम्प्लॉय से कोई प्रोडक्शन यूनिट में काम देना है तो बस ये प्रोडक्शन का वर्क हो जाए बस। लेकिन एचआरएम ने कहा कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोएक्टिव इंटीग्रेटेड अप्रोच पे काम करना शुरू किया। एम्प्लॉयज रिलेशंस अगर हम बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट में जो है प्लूरिस्टिक, कलेक्टिव, लो ट्रस्ट एंड यूनिटरिस्ट एंड इंडिविजुअलाइज हाई ट्रस्ट पे बात की गई। एम्प्लॉय रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट में उतना ज़्यादा जो है इस पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। रोल की अगर हम बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट में लोग ज़्यादा स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, एचआरएम में जो है लोग ज़्यादा इंटीग्रेटेड की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइज्ड है पर्सनल मैनेजमेंट, तो जब ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और सेंट्रलाइज्ड होगा तो वर्क ज़्यादा नहीं होगा। फ्लेक्सिबल है, डिसेंट्रलाइज है तो वर्क ज़्यादा होगा। मतलब कोई डिसीजन किसको कितना लेना है ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हों। फोकस कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड एचआरएम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात करता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आप लोगों को इसे शेयर कर दूंगा और इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआर। Difference between the personal management and HRM. HRM essentially emphasizes and incorporates those expectations which are not being fulfilled through the traditional personal management. However, the few management scholars have opened HRM as the old bottle with the new label. देखिए एमस्ट्रॉन्ग ने 2020 में जो चीज को लिया गया कि एचआरएम जो है वह पुरानी बोतल का एक नया लेबल है। मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं, ट्रेडिशंस हैं, वर्किंग है, वो सभी चीजें वही हैं, लेकिन वो नए ढंग से है। इट इंटीग्रेट्स इन ए मीनिंगफुल वे the numerous subsystems like the performance appraisal, career development, organizational development, reward management, employee relations, etc. In the subsequent units, we will be covering all these functions in the detail. आप लोग जब आगे देखेंगे तो और डिटेल्स में है। मैंने जैसा भी आपको शुरू में बताया कि हमारे 4 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक की अलग अलग यूनिट है, जिसमें आप सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट से लेकर के जो है डिटेल ग्रीवांस हैंडलिंग तक की स्टडी करेंगे। HRM and its evolution in India अगर बात करें, the history of the HRM in India dates back to the early 1980s when Mr. Uday Parikh and Mr. T.V. Rao they championed the cause of the HRM movement. The early adopters of the HRM movement include the public sector enterprises such as Bharat Heavy Electricals Limited, State Bank of India Limited। तब इन सब जगहों से हमारे भारत में एचआरएम की हिस्ट्री का जो है स्टार्टिंग हुआ। जब हम बात करें द प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉय इन द न्यू सिनेरियो है द फॉलोइंग फीचर्स। देखिए जब हम बात करें एचआरएम की तो जब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया जो इस नए दौर में जिसको कहते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज आर द मोस्टली इन देयर मिड 20s और early 30s. All employees are the educated and their level of the general awareness is high. Employees are the more committed to the profession than to the organization. The rates of the attrition and the level of the mobility of the employee among the organization are high. तो इन सब जो है एट्रीब्यूट्स को लेकर के नया जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वह आया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एचआरएम, the primary objective of the HRM is to make the certain and the provisions of competent human resources in the business enterprises so that it will contribute in reaching organizational objectives. According to Scott Clothier on the Spiegel,
The objective of the human resource management is an organization. It is to obtain maximum individual development, a desirable working relationships between the employers and employees, and employees and the employers, and to affect the molding of the human resources as contrast with the physical resources. इस प्रकार से जितने भी मैनेजमेंट है आपके, चाहे वो आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, व्यक्तिगत कोई विकास किसी एम्प्लॉय का है, डिजराइबल वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप करना, और जो रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय द वेरी इंपॉर्टेंट. Dear learners, if you want to develop the organization, you develop the very good relationship between the employer and employee, because all of you the future generation managers. आप सब मैनेजर्स हैं. कोई डायरेक्ट रोल में होगा मैनेजर के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के, या तो कोई डायरेक्ट होगा, लेकिन सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं मैनेजर. तो आप सोसाइटल ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं. द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव आर socially and ethically responsible for the need and the challenges of society. While they're doing so, they have to minimize the negative impact of such demands upon the organization. The failure of the organization to use their resources for हेलो. सर का गया क्या? एक मतलब 5 स्टूल उठाने में उसको लग रहा है 30 मिनट. बेसिक जो आटा और सब मिला के मतलब 1 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट लग रहा है. बगल लगाया तो कर रहा हूं आया 15 लगाया तो सारा 2 मिनट में मुझे 5 मिनट पूरे उसमें 5-7 बिल्कुल लगा के उसमें डाल दिया. वो ज्यादा अच्छा था. हाँ लगा. सर कहाँ चले गए हैं आप? Sir has left the meeting.
हाँ, आप लोगों को मैंने पूरा जो है डिटेल में भी बताया। आप लोग लास्ट पीपीटी तक थे, अभी मैं 1 मिनट पहले थोड़ा-सा एग्जिट हो गया था। हेलो? सर आप थे सर टॉपिक। हाँ सर, आ रही सर आवाज आपकी। मैं भी आपको पीपीटी भी शेयर कर देता हूँ। पीपीटी आपको मैं मैम को भेज दूँगा और मैम आपको भेज देंगे। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। यस वेरी सर। यस सर। हाँ सर, अगर आपके क्लियर कोई सर, प्रश्न क्लियर है आवाज तो आ आप प्रश्न ज़रूर पूछिए। वो जो है वो नहीं है, सर मतलब लास्ट टॉपिक आप सोसाइटल पेंटर नहीं ऑब्जेक्टिव है बताया है। बस। हिमांशु जी, थोड़ा-सा आप म्यूट अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही स्पष्ट। हाँ, प्लीज़ अगर संभव हो। हाँ, थैंक यू। हाँ, सर आपने लास्ट टॉपिक सोसाइटल ऑब्जेक्टिव बताया है ना? हाँ, हाँ। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। हाँ, मैंने उसी को बताया। थोड़ा-सा लास्ट में 1 मिनट पहले बस थोड़ा-सा एग्जिट हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ जी नहीं। सर। तो उसको सर आप एक बार रिपीट कर मैं देंगे आप तो। लोगों को प्रॉपर ढंग से उसको भी शेयर भी कर दूँगा उसी ग्रुप में। आप लोग के ग्रुप में मैं हूँ कि नहीं हूँ? नहीं होऊँगा तो मैं जुड़ जाऊँगा, कोई बात नहीं। हाँ सर, जुड़ जाइए उसमें। हाँ, मैं उसको भेज दूँगा। अराउंड 40 स्लाइड्स का है ये पीपीटी, 40 हाँ सर, स्लाइड्स है। फिर भेज जरूर दीजिएगा। नहीं, ज़रूर भेज देंगे। अभी हम मैम को भेज देंगे और मैम से हम रिक्वेस्ट भी कर लेंगे कि मैम प्लीज़ हमारे जो लर्नर्स हैं इनको आप ज़रूर आप भेज दीजिए। अभी मैं मैम से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, और आप लोग का कोई अगर क्वेरीज है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। कोई अगर आपकी क्वेरीज है तो आप अगर पूछेंगे तो कब मुझे तक अच्छा चलेगा लगेगा। ये तो बताइए, कुछ टाइम वगैरह सर को भी व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेते हैं। सर जो हम लोग को असाइनमेंट बनाने हैं वो हमें सबमिट कहाँ करना है सर? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस मोड से हैं आप उस पे कर सकते हैं। सर हमारा तो ये ऑनलाइन कोर्स है ना, तो हम लेकिन किस लिंक पे जाके सबमिट करेंगे नहीं उसे? तो आपको तो एलएमएस का जो पोर्टल है उसी पे जमा सबमिट करना होगा, ऑनलाइन है। ओके ओके सर, ऑनलाइन। थैंक यू सर। हेलो, लास्ट डेट कब है सर? वो आपको सब चीज इसमें आपकी 113 इंफॉर्मेशन उस लिखा पे है, मिलेगी मतलब कि आपका लास्ट डेट उसको 31 अक्टूबर हाँ है। उसको आप जहाँ रिक्वेस्ट जो तक है का टिकट विजिट है कर सकते हैं। अभी अगले सेकंड चला जाएगा। ओके, थैंक यू। सर सर ये जो हम असाइनमेंट प्रिपेयर अभी करते उसके हैं अलावा इनमें कोई नंबर ऑफ पेजेस की भी कोई बाउंडेशन होती है कि 50 पेजेस का या 30 पेजेस से इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? पर नहीं ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि अगर आप कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कम से कम 9-10-12 पेज लिखिए, अच्छे से लिखिए, 12-13 पेज में लिखिए। भाई असाइनमेंट तो आप घर बैठ के लिखते हैं, तो आपके पास डिजिटल कंटेंट होते हैं, आपके पास बुक होते हैं, तो इतना शॉर्टकट भी मत लिखिए। कई नहीं लर्नर्स नहीं, जो शॉर्टकट नहीं सर, बहुत कई ज्यादा लेंथी लर्नर्स हैं क्वेश्चन हो गए हैं कई इस वजह से लर्नर्स सर। हैं जो सिर्फ 2-3 पेज में लिखना चाहते हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। सर 2-3 पेज में तो हो ही नहीं you सकता must है। give the one standard answer in the rational papers, number of सर papers। मैंने जो असाइनमेंट बनाया मेरे तो उसमें ऑलमोस्ट 40 पेजेस हो जाएंगे सर, तो उसमें कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, नहीं ठीक है, औसत सही है। और सर एक चीज और पूछनी थी। थैंक हाँ, यू। सर जो फर्स्ट पेज है असाइनमेंट का हमें लगाना होता है वो कहाँ से, वो भी ऑनलाइन मिलेगा? वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको कवर पेज कहते हैं और जनरली हाँ जी अवेलेबल सर। होगा, आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आप नमस्कार सर, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अभी MBA वगैरह नहीं शो कर रहा है, तो ये अभी कोई डेट आएगा क्या, कब तक शो करेगा? इसको हम चेक करके आपको बताते हैं। आप लोग टच में रहिए, आप लोग जब टच में रहेंगे तो अपने आप चीजें मिलेंगी। जो आपका ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आपकी सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सर आप ऐड हो जाइएगा बस उसमें। हाँ ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। हेलो हाँ प्लीज आदित्य जी बोलिए। जी, जैसे सर ये मेरी डिस्टेंस लर्निंग वाला है, तो सर जैसे मैंने असाइनमेंट बनाया है तो इसको सर मैं लर्निंग सेंटर पे आके सबमिट कर सकता हूँ? किस पे? जहाँ लर्निंग सेंटर है जैसा मेरा यहाँ पे, हम्म, तो वहाँ पे जाके असाइनमेंट की हार्ड कॉपी सबमिट कर सकता हूँ? हाँ जरूर कर सकते हैं जी। और सर उसकी सॉफ्ट कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी? नहीं, आप पूछ लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप हार्ड करते हैं तो सॉफ्ट की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
If you are submitting the hard copy, then no required the soft copy. ओके ओके, थैंक यू। तो हाँ सर, ये फिर जमा कहाँ करना है सर, लेकिन वहाँ पे आके रीजनल सेंटर? आपका जो स्टडी सेंटर होता है वहीं जमा करना होता है। ठीक है सर, ठीक। और सर पहले के 2 पेज जो हैं असाइनमेंट के, जो क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें, वो दोनों पेपर आगे लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बहुत जरूरी है कि आप पहले कवर पेज लगाएं। कवर पेज के बाद आप जो है जरूर क्वेश्चन पेपर लगाएं, और क्वेश्चन पेपर के बाद क्वेश्चन लिख लिख के बहुत आंसर लिख रहे जरूरी हैं। है कि प्रश्न पत्र जरूर लगाएं, जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको जरूर लगाएं। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर कैन यू प्लीज टेल अबाउट द पोर्टल जो आपने अभी बताया जहाँ पे हमें असाइनमेंट मिल सकता है? 2 मिनट बस। देखिए, जो पोर्टल की मैंने बात किया है, जो भी मैंने एक मीटिंग में 2 मिनट में आ जाइएगा। देखिए, जिस की मैंने भी डिस्कस किया है कि जो पोर्टल है, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन एमबीए परसू कर रहे हैं वो उनके लिए है। उनको बाकायदे उसका आईडी पासवर्ड सब मिल जाएगा। हजरात फातिमा जी, आपका प्रश्न था तो जी। ओके, थैंक यू सर। सर जो डिस्टेंस है तो अभी उनको नहीं सबमिट करना है जी सर? जैसे मेरा डिस्टेंस है ऑनलाइन। हाँ, आपका क्या है? ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है कि ऑनलाइन एमबीए आप कर रहे हैं? सर डिस्टेंस है मेरा। हाँ, तो आपको नॉट रिक्वायर्ड। ओके ओके, थैंक यू सर। नॉट रिक्वायर्ड। सर दोनों अलग अलग हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे जो विद्यार्थी हैं, आपका जो जिसपे आपका जो रजिस्ट्रेशन का मोड है, हाँ 2 मिनट में हम बात करते हैं। मैम 2 मिनट बैठे, 10 मिनट, ठीक। हाँ, मेन क्या है कि इसमें जब आप एडमिशन लिए होंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन का जो मेन स्लिप है उसमें लिखा होता है कि आपका एमबीए कौन सा है, ऑनलाइन एमबीए है कि डिस्टेंस लर्निंग का। सर जैसे मेरे में ओडीएल है तो क्या करना है? सर मेरा ओडीएल है तो क्या करना होगा? दोनों लगभग एक है। बहुत थोड़ा सा उसमें ऑनलाइन में जो बच्चे हैं उनको असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करना ऐसा है। आप हमारे www.ignou.ac.in पे जाकर के पूरा डिटेल आप पढ़ भी सकते हैं। सब प्रोग्राम के विषय में लिखा है। थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपर ढंग से जाकर के हमारे उन वेबसाइटों को देखें, पढ़ें, ब्रोचर को पढ़ा करिए। आपके बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब जो है उसमें मिल जाएंगे। आप जरूर पढ़ा करिए। सर जिसका प्रोग्राम ओडीएल है तो उसको क्या हार्ड कॉपी जाके सबमिट करनी पड़ेगी? हाँ, आप जमा कर दीजिए। हाँ, आपको हर सूचना जो है रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, आपको सब चीजें मिलेंगे। ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, मैं नंबर आपको दे देता हूँ। अगर कभी कोई आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, इसी ग्रुप में मैं जुड़ जाऊंगा। ठीक है, ओके सर। मैसेज मैं आपको दे देता हूँ, तुरंत भेज देता हूँ। हाँ, भेज दीजिए सर।